প্রথমে মিডিয়া বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ। আজকে প্রেস যে মিট হচ্ছে, সমস্ত ডাটা এবং সমস্ত ব্রিফিং করবে আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি কেশব শশী কুমার। থ্যাংক ইউ। Good afternoon to all media friends. It is a very important press meet because today morning in two of the newspapers we found one false news, completely false news had been published. ये पूरा गलत इंफॉर्मेशन पब्लिश हुआ था। इसको देख के हमने सोचा हम इमीडिएटली इसको एक क्लैरिफिकेशन देना है फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी, पर्टिकुलरली ST स्टूडेंट कम्युनिटी हु आर residing outside the state, who are getting their education outside the state. पहले मैं ये बोलने के लिए एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ from ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, from गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, we are giving scholarship, student scholarship for 33,315 students every year. So ये कैसे होता है? लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, लास्ट एकेडमिक ईयर का जो स्कॉलरशिप होता है दैट इज प्रोवाइडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. दैट मीन्स द स्कॉलरशिप मींट फॉर 2024-25 should be paid in the beginning of the current financial year, that is the financial year, that is the academic year 2025-26, subject to availability of the fund. ये फंड कहाँ से आता है? हमको 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है, 10% स्टेट गवर्नमेंट का फंड है। तो 90-10 शेयर में ये पूरा अमाउंट हमारे पास आता है। नाउ स्टूडेंट को 33,315 स्टूडेंट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो इसमें इन द बिगिनिंग ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज बाय April 1st 2025 हमारा पास 28.03 crores हाथ में था for the purpose of giving the scholarship to the students. So 28.03 crore को लेके हम स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट किया 28,163 स्टूडेंट्स को. We already distributed in the month of April only. In fact, Tripura is the first state to distribute the entire scholarship. With whatever the fund was available with us, we could distribute to whatever the number of students possible. That is for 28,163 students. Most of them are studying in Tripura. We have already distributed the scholarship. Only that much fund was available with us, so we could distribute that amount. Then, how many students are remaining? 5,152 students are remaining. And to pay the scholarship to 5,152, we need another 25.63 crore rupees. This fund has not yet been released by Government of India. We are still pursuing with Government of India. In fact, today morning also we talked. They said that within 1 week time, they will be able to release this amount. Once this amount is released, it will take us not more than 15 days time to release the scholarship to all the remaining students also. The remaining 5,152 students जो बाकी हैं, उन लोगों को भी within 15 days time after receipt of the fund, we will be able to send the scholarship to their respective bank accounts. So, बीच में और एक डेवलपमेंट हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला that इतना दिन तक SNA PFMS आप लोगों को पता है, that was the mode of payment. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला इस साल से हम मोड ऑफ पेमेंट शिफ्ट करेंगे, SNA PFMS मोड से SNA स्पार्श मोड में शिफ्ट करेंगे. SNA स्पार्श मोड इज ए बेटर सिस्टम, क्विकर डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स. दैट सिस्टम विल बी मोर बेनिफिशियल. बट उस सिस्टम को NSP पोर्टल मींस नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उसके साथ इंटीग्रेट करने के लिए और थोड़ा टाइम लगेगा. इसीलिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा, हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को लिखा, सर ऑल्सो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑल्सो
wrote to Ministry of Tribal Affairs as well as to Ministry of Finance to relax this provision. Like ये जो SNA स्पार्क्स में शिफ्ट करने के लिए इस साल छोड़ के, नहीं तो थोड़ा डिले करके हमको पुराना जो सिस्टम था SNA PFMS, उस सिस्टम में स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने के लिए रिक्वेस्ट किया. सो दो रिक्वेस्ट था. अभी जो बाकी पैसा है 25+ करोड़ उसको पहले रिलीज कर देने के लिए. सेकंड, हमको अलो करने के लिए पुराना जो सिस्टम था उसमें पेमेंट प्रोसेस करने के लिए, सो दैट विद द एक्जिस्टिंग सिस्टम वी कैन इमीडिएटली सेंड ऑल द स्कॉलरशिप टू द रिमेनिंग 5000+ स्टूडेंट्स. सो इसके लिए हमारे तरफ से फ्रॉम ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारा जॉइंट डायरेक्टर प्लस और एक स्टाफ, इन लोगों को हम पर्सनली भी भेजा वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में परस्यू करने के लिए. उसके बाद जो बाहर एसटी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन लोगों का स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को लेके 2 बार मीटिंग भी हुआ डायरेक्टरेट में विद द डायरेक्टर ऑफ ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट. उसके बाद मैंने जैसे बोला सेक्रेटरी आई रोट 2 letters. I followed up over phone and sir also, Honorable Minister sir also wrote 2 letters and pursued over phone. ये सारा करने के बाद आज सुबह भी बातचीत हुआ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑफिशियल के साथ. उन्होंने बोला विदिन ए वीक हाँ उन लोग ये बाकी जो 5152 स्टूडेंट का जो स्कॉलरशिप अमाउंट है इसको रिलीज करने के लिए हम लोग कोशिश करेगा. शायद आ जाएगा भाई नेक्स्ट वीक आने से और 15 दिन को अंदर ये स्कॉलरशिप पूरा उन लोगों का हाथ में हम पहुंचा दे सकते हैं. सो लेटेस्ट बाय 30th November next, by end of next month, we hope that we will be able to send the scholarship to all the remaining students also. यही बोलना चाहता हूँ. एंड आप लोग सोच सकते हैं लाइक ये सिर्फ त्रिपुरा में हो रहा है. नहीं, ऐसे नहीं, पूरा इंडिया में ऐसे हो रहा है. पूरा इंडिया का प्रॉब्लम है, ये सारा पैन इंडिया प्रॉब्लम है. In fact, Tripura was the first state to distribute scholarship with the available fund to 28,000 students during the current financial year. ये हमारा बड़ा अचीवमेंट है. इसके बारे में कोई मीडिया ने कुछ नहीं बोला कि गलत इंफॉर्मेशन बोल के स्टूडेंट को डराना का जरूरत नहीं था. स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करना है हमको. स्टूडेंट को हम सही इंफॉर्मेशन देना है. अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे साथ अप्रोच कर सकता था. ऐसे गलत इंफॉर्मेशन पब्लिश करने से क्या होता है, स्टूडेंट लोग पढ़ के टेंशन हो जाता है, पैनिक हो जाता है. दैट इज नॉट गुड. दे आर स्टडीइंग आउटसाइड द स्टेट. These 5150 students who are studying outside, most of them, 99% of them are studying outside the state. इन लोगों का मन में एक मतलब फियर ये करना का ये ठीक नहीं है. तो इसीलिए हमने सोचा आज वो पब्लिश हुआ, उसको देख के हमको शॉक लगा. इसीलिए हम रिक्वेस्ट किया ऑनरेबल मिनिस्टर सर को दैट आगे हम मीडिया फ्रेंड्स को बुलाएंगे, हमारा एक्सप्लेनेशन दे देंगे क्या हो रहा है, कितना गलती से एक इंफॉर्मेशन पब्लिश हुआ, इस सबको बोलना है. पर्टिकुलरली मैं थ्रू यू ऑल आई अपील टू ऑल द स्टूडेंट कम्युनिटी हु आर स्टडीइंग आउटसाइड द स्टेट, प्लीज डू नॉट बिलीव एनी सच रॉन्ग इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड इन एनी मीडिया. If you have any confusion, you please directly contact us. We will give you the correct information. We are here for you. We are working for you, and we are following up with other officials in Government of India for timely release of fund and timely release of disbursement of your scholarships. So we assure you that within next 1 month time, we will coordinate with the Government of officials and also other stakeholders in the state government, and we will ensure that your scholarship is disbursed to your account by end of November. Now we are vigorously following up with Government of India. They have also promised, I repeat, they have promised that within another 1 week time they will release the remaining fund. ये जो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है हमारे पास पैसा पहुंच गया था फिर भी हमने डिस्बर्स नहीं किया है, बिल्कुल गलत है. ऐसे कैसे हो सकता है? बच्चे लोगों का मन में ऐसे कैसे फियर साइकोसिस ये कर सकता है? दैट इज नॉट the right way of spreading, I mean, such erroneous information should not be spreaded in the student community. We are here to take care of the students, and we will do our level best to ensure that the entire scholarship is disbursed by end of November. Thank you.